तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं डिराइव अ फार्मूला फॉर intensity of electric field due to an electric broad किसी को इक्वाटोरियल प्लेन और ट्रांसवर्स of an electric dipole इक्वाटोरियल प्लेन और ट्रांसवर्स और ब्रॉड साइड okay so this derived formula for intensity of electric field due to a broadside equatorial plane or transverse if of an electric dipole. So we have we have an electric dipole. We have an electric dipole AB. There are charges located plus q and minus q at a distance r. At a distance r, a point P located. They are to find intensity of electric field on an equatorial plane. This is equatorial plane. There are even there are E2, there are final E. Okay, its length is 2L and also its length is R. There are midpoint of electric dipole O, so there will be L and there will be L. R square plus L square. R square plus L square. So write the statement. Answer. We have an electric dipole. We have an electric dipole AB plus Q charge and minus Q charge located on ends points of dipole, at the length of dipole, the length of dipole is 2L and at a distance r, at a distance r located at point P, located a point P, there are to find intensity of electrical field. We have an electric dipole AB plus Q charge and minus Q charge located on ends points
of dipole, plus q charge and minus q charge located in its point of dipole. The length of dipole is 12. The length of dipole is 12 at distance r. The length of dipole is 12 at distance r. Located a point p. Located a point p. There are to find intensity of electric field. यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है भैया, फाइंड करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो वी हैव टेकन टू देयर आर AO यहाँ पर राइट कर देते हैं, ओके, प्लस q चार्ज माइनस q चार्ज OP. Then we used to in a triangle which triangle is it to AOP. AOP means there are a right triangle. These are right triangle, so there are applicable of Pythagoras theorem. These are right triangle, so they are using by Pythagoras theorem. H square equal to p square plus b square. H square equal to p square plus b square. H square means AP square equal to p square. P square is where p perpendicular. This is OP square. OP square plus OA square. OA square or OB square. AP square equal to what square? AP square equal to AP square. OP square equal to R square plus AOB square means L square. ठीक है, ओके. There AP equal to root R square plus L square. There are AP equal to root R square plus L square. Okay. So and cos theta equal to what you have in the diagram. Cos theta equal to base upon hypotenuse. Base upon hypotenuse. So what is the value of base? It is L and root AP. L upon AP. L upon AP. So L upon root R square plus L square. Cos theta equal to L upon AP root R square plus L. It's a basic. It's a basic. Okay. This is completed. Intensity of electric field. Intensity of electric field due to charge plus Q inside A. Inside A. Intensity of electric field due to charge plus Q inside A. Then according to equal to E1 equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon AP square. 1 upon 4 pi epsilon Q upon AP square. It is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 1 upon AP square value R square plus L square. R square plus L square. Okay. And intensity of electric field. Intensity of electric field due to minus Q charge. Due to minus Q charge, then E2 equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon BP square equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square plus L square. So total magnitude of intensity of electric field. Intensity of electric field equal to E1 plus E2. Equal to E1 equal to
E1 plus E2 into cos theta equal to E1 plus E2 into cos theta. Then we have to write this. Okay, you can write this. तो अब हम आगे क्या करेंगे, व्हाट इज इक्वल इक्वल टू E1 plus E2 into cos theta equal to E1 plus E2 into cos theta equal to E equal to E1 plus E2 into cos theta. Then E equal to E1 value of E1 1 upon 4 pi epsilon q upon r square plus l square 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square plus l square plus 1 upon 4 pi epsilon naught 1 upon q upon r square plus l square into क्या होगा cos theta into cos theta. Then equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r plus l square 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square plus दोनों ऐड हो जाएंगे तो आओ 1 upon 4 pi epsilon naught 2q upon r square plus l square. देखिए यहाँ पर दे रहा है q upon r square plus l square, यहाँ पर ये भी 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square plus square है, यहाँ पे 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square plus l square है. तो 1 ये हुआ और 1 ये हुआ, दोनों ऐड होकर 1 plus 1 equal to 2. तो then 1 upon 4 pi epsilon naught 2q upon r square plus l square into cos theta then equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2q upon r square plus l square. अब हम cos theta की जगह क्या रखेंगे, l upon root r square plus l square. ओके, रखें क्या? ओके, रख देते हैं l upon root r square plus l square. L upon root r square plus l square. That's equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2ql upon r square plus l square. और इनका क्या हो जाएगा, r square plus l square का होल पावर 1 upon 2, r square plus l square का होल पावर 1 upon 2. ओके, दैट्स क्लियर. क्या होगा यहाँ पर 1 upon 4 pi epsilon naught 2q divided by r square plus l square into l upon root r square plus l square वो equal to again 1 upon 4 pi epsilon naught the same 2q and l को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q l होगा r square plus l plus l square और रूट की वैल्यू होगी 1 upon 2. वैल्यू ऑफ रूट इक्वल टू 1 upon 2. देन द पावर ऑफ r square plus l square 1 upon 2. इसके बाद हम जानते हैं कि जब भी कोई मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो तो पावर क्या होगी, प्लस 9. तो 1 plus 1 upon 2 पावर क्या होगी, 1 plus 1 upon 2. तो 2 1 is 2 plus 1 equal to 3 by 2 होगी. पावर क्या हो जाएगी 3 by 2. तो यहाँ पर क्या रखेंगे, पावर 3 by 2 रखेंगे. ओके, देन equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 1 upon 4 pi epsilon naught equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2ql divided by r square plus l square plus l square का होल पावर 1 upon 2. अब 2ql इक्वल टू, भैया पढ़े हो ना, कहां पर पढ़े हैं अपन, when electric dipole
मोमेंटम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम P इक्वल टू 2qL। जहाँ क्या रख देंगे भैया, देखो E इक्वल टू क्या होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गिवन वैल्यू P r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इक्वल पावर 1/2। अब क्या होगा, इस r की जगह ये L बहुत छोटा होगा, then r is much less than is greater than L। जैसे r बहुत बड़ा हो गया, L भी छोटू सा रहा, तो छोटू सा L का कोई मतलब नहीं, L को क्या कर देंगे वहां से हटा देंगे, बाहर कर देंगे। ये तो भैया r L का बाहर का रास्ता दिखा दिए, तो E इक्वल टू क्या हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर प्लस 0। तो ये वैल्यू खत्म, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3/2, क्या होगा 3/2, यहाँ होगा 3/2, 2 से 2 खत्म, क्या बचा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r क्यूब, क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r क्यूब। ये है हमारा, ये फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस पॉइंट P पर एप्लीकेबल होगी, अप्लाई होगी, ठीक है। जो क्या होगा, ये E इक्वल टू यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड E इक्वल टू क्या लगेगा यहाँ पर, E इक्वल टू फार्मूला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r क्यूब। ये देखिए यहाँ पर ये फोर्स एप्लीकेबल होगा यहाँ पर, ओके। तो आज बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ओके। तो एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले स्टेटमेंट लिखे होंगे जो आप लोग लिख चुके होंगे। तो AB इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, प्लस Q चार्ज एंड माइनस Q चार्ज एंड्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट्स लेंथ इज 12 and at distance r a point P located, its distance r a point P located, they are find to intensity of electrical field, they are find to intensity of electrical field। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी हमको। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी कहाँ निकालनी है, ब्रॉड साइड में, या एक्स को बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन में, या सी को क्या बोलेंगे ट्रांसवर्स प्लेन, क्या बोलेंगे ट्रांसवर्स प्लेन। तो देखिए यहाँ पर ट्रांसवर्स प्लेन में काम करेंगे, P ये होगा प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज, तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं उसके स्टेटमेंट निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल AOP कहां पर है, AOP देखिए कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में या इन ट्रायंगल में कौन सा एप्लीकेबल होता है, कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h² = p² प्लस b², h² = p² प्लस b²। अब हम बात करेंगे तो AP² इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP² प्लस A²। यहाँ पर AP² इक्वल टू R² प्लस L²। OP की वैल्यू क्या है, R है, तो OP की वैल्यू क्या रखेंगे, R रखेंगे। OA की वैल्यू क्या है, OA की वैल्यू क्या है, L है, तो L की OA की वैल्यू क्या रखी, L²। AP इक्वल टू क्या होगा, √R² प्लस L²। AP इक्वल टू क्या होगा, √R² प्लस L²। फिर इसी में निकाल देंगे cos थीटा की वैल्यू। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो L अपॉन AP, L अपॉन √R² प्लस L², L अपॉन √R² प्लस L², ओके। तो यहाँ पर L अपॉन √R² प्लस ये हो गया। अब हमको निकालनी है इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ पर, पॉइंट P पर, किसके कारण, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल AB के कारण, है ना। क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, इलेक्ट्रिक पॉइंट P पर, किसके द्वारा, इस प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q इनसाइड A, इसमें हिंदी में लिखेंगे प्लस Q के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण A तरफ या A साइड में, प्लस Q साइड, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मींस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q इनसाइड A। अब आगे लिखेंगे तो K1 इक्वल टू, भैया पढ़े हैं ना इसमें कूलॉम्स लॉ में, कैसे पढ़े हैं, कूलॉम्स लॉ में क्या पढ़े हैं, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²।
इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर। तो इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस होगी, जहां a से p का डिस्टेंस कितना है, ap स्क्वायर है, तो देयर आर ap स्क्वायर। अब ap स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, निकाले हैं r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो 1/4πε0 q अपॉन ap स्क्वायर की वैल्यू है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यहां लिखिए r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q चार्ज। यहाँ क्या होगा, माइनस q चार्ज, माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस q आवेश के कारण, माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देन F इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन bp स्क्वायर। यहाँ पर डिस्टेंस AP था, यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, bp होगा, जहाँ इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या करते हैं, टोटल निकालना है, तो प्लस की और माइनस की दोनों के कारण कितना बन रहा है, तो दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू E1 प्लस E2 इंटू कॉस थीटा। चूंकि कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें क्या बताना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन, दिशा बताना पड़ेगा, आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड के या इलेक्ट्रिक डाइपोल के किस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो दिशा के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, cos थीटा। देन इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। देखिए कहां है, 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। फिर वही सेम चीज 1/4π q अपॉन r प्लस l स्क्वायर इनटू cos थीटा, ये है इनटू cos थीटा। फिर इक्वल टू दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दोनों सेम है, तो 1/4πε0 2q r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू cos थीटा। 1/4πε0 2q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू cos थीटा की वैल्यू यहां पर देंगे l अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यहां पर एज है ना, हमारे पास क्या है, a की वैल्यू क्या है, ये cos थीटा की वैल्यू l अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, जहां इनटू l अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इस बार इक्वल टू 1/4πε0 2ql 2q l का दोनों का इनटू हो गया, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। वैल्यू ऑफ रूट, रूट का मान कितना होता है, 1/2 की पावर चढ़ा दे तो रूट यहाँ से कैंसिल कर, रूट यहाँ से हट जाएगा, तो 1/2 को पावर लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/4πε0 2ql r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर 1/2, तो 1/2 जगह सॉरी यहाँ पर होगा 3/2, क्योंकि 1 + 1/2 इक्वल टू क्या होगा 3/2। अब 2ql इक्वल टू क्या होता है, p, 2ql इक्वल टू क्या होता है, p विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2 की वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, p होगा। इसके लिए हमें हमारे पहले पार्ट का वीडियो आप देखें, उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ठीक है, तो आपको आगे देखते हैं, p इक्वल टू 2ql इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 3/2। अब r इज मच इतना बड़ा, ठीक है, ग्रेटर देन l, r बहुत बड़ा है किसके अपेक्षा, l के अपेक्षा। l को क्या करेंगे, 0, l हमारा यहाँ से कैंसिल 0 होगा, तो l 0 होगा, क्या बचेगा, r स्क्वायर की पावर 3/2, तो 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या होता है, p अपॉन r3, जो हमारी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट p, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट p। ओके, तो इसको लिख लिए होंगे, फटाक से लिख लिए पॉज करके। ओके, तो अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप जरूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। आप बिल्कुल अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, अपने परिवार को, अपने आसपास क्षेत्र के स्टूडेंट्स को, जितने भी आपके आसपास परिचित हैं, सभी के पास ये वीडियो शेयर करना है और लाइक करें, और सबको इस सब बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको लगातार मिलता रहे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा, क्या निकालना, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल। तो सबसे पहले हम एक समान विद्युत क्षेत्र बना दिए, ये देखिए, ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चल रही हैं, विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र का, जहां बीचों बीच हमारा एक डाइपोल स्थित है, ये देखिए,
यहाँ हमारा डाइपोल है, ठीक है। यहाँ पर इसका प्लस पॉइंट वो है, इसकी लेंथ क्या होगी टोटल 2l होगी। यहाँ पर l होगा, यहाँ पर l होगा, और यहाँ पर चार कॉन्स हो रखते हैं -q, तो +q रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर रखेंगे -q। यहाँ कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, F इक्वल टू क्या होगा QE, F इक्वल टू क्या फोर्स अप्लाई होगा QE, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। माना कि हमारे पास ए बी एक वैल्यू द्विध्रुव है जिसकी कुल लंबाई 12 है, जिसके सिरे ए पर +q आवेश, सिरे बी पर -q आवेश स्थित है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है जहां इस पर F बराबर QE का फोर्स बल लग रहा है, इस पर F बराबर QE का फोर्स, ठीक है, लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स वॉल्यूम में लगेगा। कैसे लगेगा, यहाँ पर वॉल्यूम में लगेगा। ये +q चार्ज है, मान लो यहाँ पर -q चार्ज है, जो -q +q को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। जो -q +q को क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। ये क्या होने की कोशिश करेगी, ऐसे राउंड करने की कोशिश करेगी, देखो ऐसे राउंड करने की कोशिश करेगी। और यहाँ पर जो -q है, ये माइनस को क्या करेगा, प्लस करेगा, माइनस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित होगा तो क्या होगा, ये ऐसे फोर्स इसको दूर की ओर जाने, दूर की ओर फोर्स लगाएगा। भाई चलो दूर चले जाएगा, दूर चलो, है ना, दूर चलो, तो इसको क्या भगाएगा, दूर भगाएगा, और इसको क्या करेगा, पास बुलाएगा, ठीक है। +q चार्ज -q चार्ज की ऐसे 180 डिग्री में घुमाने की कोशिश करेगा। किसी डिग्री में 180 डिग्री में घुमाने की कंटिन्यू कोशिश चलेगी कि भाई इसको 180 डिग्री में घुमा दो, इसको कितने डिग्री घुमा दो, 180 डिग्री में घुमा दो। तो चलो देखते हैं 180 डिग्री इसको घुमाते हैं, नहीं घुमा पाते हैं, इसको 180 डिग्री को घुमा पाते हैं। F इक्वल टू QE, तो यहाँ पर F इक्वल टू QE फार्मूला देखिए, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए ठीक है। तो we have an electric dipole AB, there are inside A +q charge and inside B -q charge. Its length is 2l. Its length is 2l. Suppose the perpendicular distance on uniform electric field BC, perpendicular distance BC at a point A. Okay. There are applied force F equal to QE. There are applied force F equal to QE on electric dipole. Okay. तो अब हम निकालना है विद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालना है। विद्युत ध्रुव आघूर्ण किसी एक समान क्षेत्र में रखें, तो यहाँ पर रखें, क्या निकालेंगे, ये हो गया आपका, ये तो आपने शुरू में बना के कहानी अपनी, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, टॉर्क, आघूर्ण, टॉर्क या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आघूर्ण बोलते हैं। टॉर्क इक्वल टू फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो व्हाट यू हैव टॉर्क, जो है टॉर्क क्या है, टाउ को कुछ लिखते हैं, टाउ क्या होता है, टॉर्क मींस यहाँ पर टाउ होता है। तो टाउ इक्वल टू फोर्स क्या हमारा अप्लाई हो रहा है, मान लो F हो रहा है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, देखिए ये है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखिए एकदम 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है ना, क्या बन रहा है, 90 डिग्री के परपेंडिकुलर का काम करेगा। यहाँ F क्या कर देंगे हम, BC, क्या कर देंगे, BC। और इन ट्रायंगल ACB में, इन ट्रायंगल ACB, ठीक है, इन ट्रायंगल ACB। तो ACB में हमारे cos थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, ये sin थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो sin थीटा लेना पड़ेगा। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या लंब बटे कर्ण। यहाँ पर क्या होगा, sin थीटा बराबर p अपॉन h, p की वैल्यू क्या है हमारी, परपेंडिकुलर लंब की वैल्यू नहीं पता, तो क्या कर देंगे, BC अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, 2l, क्या है, 2l। यहाँ पर क्या होगा, 2l
साइन थीटा इक्वल टू BC। ये 12 डिवाइड में कहा जाएगा N2 में इक्वल टू BC अपॉन 12 साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा BC। क्लियर है ना? जहाँ BC की वैल्यू रख देंगे, टाउ इक्वल टू क्या होगा फोर्स इनटू BC की वैल्यू क्या आई है 12 साइन थीटा, BC की वैल्यू क्या है 12, तो टाउ इक्वल टू F की वैल्यू क्या निकाले हैं, F की वैल्यू हमारे पास QE है, क्या रख देंगे QE इनटू 12 साइन थीटा 12 साइन थीटा, जहाँ क्या होगा टाउ इक्वल टू 2QL इनटू E साइन थीटा। अब यहाँ पर 2QL इक्वल टू क्या होगा P होगा, जहाँ क्या कर देंगे टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। ओके दैट्स क्लियर। टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। इसके देखेंगे कंडीशन, क्या देखेंगे कंडीशन देखेंगे, तो कंडीशन यहाँ पर आएंगे क्या, कंडीशन फर्स्ट बताइए यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, सबसे ज्यादा फोर्स अधिकतम टॉर्क कब लगेगा, जब थीटा इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पर, ये हमारा जो टॉर्क रहे वो क्या रहे, थीटा इक्वल टू क्या रहे 90 डिग्री है ना। जब टॉर्क थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा ये जो है ये कितना हो जाए, ये थीटा बनेगा, यहाँ का एंगल होगा थीटा इंक्लाइंड, यहाँ का एंगल क्या होगा थीटा, ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा टाउ मैक्स इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर PE साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1, जहाँ क्या हो जाएगा टाउ इक्वल टू PE इंटू 1 इक्वल टू, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर टाउ मैक्स, टाउ मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर PE। कंडीशन सेकंड टाउ मिनिमम क्या होता है, टाउ मिनिमम क्या होगा, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 हो या थीटा इक्वल टू क्या हो 0 डिग्री हो, यहाँ क्या करेंगे टाउ मिनिमम इक्वल टू PE साइन 0 डिग्री, देन टाउ मिनिमम इक्वल टू PE इंटू 0, तो टाउ मिनिमम इक्वल टू 0। ठीक है, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री ऐसे रहेगा जिसमें मिनिमम फोर्स अप्लाई होगा, 0 फोर्स अप्लाई होगा, कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, और जब ऐसे रहेगा तो क्या अप्लाई होगा यहाँ पर टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, या टाउ इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स में PE होगा, टाउ इक्वल टू PE। ओके, टाउ मैक्स इक्वल टू P और टाउ मिनिमम इक्वल टू 0 when it is an angle of 0 degree or 180 degree and tau maximum when the angle is 90 degree or perpendicular from electric fluid lines. Okay.